Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to discuss about the social development and emotional development during infancy. Uh, Now because these two concepts are intertwined and the development really doesn't happen separately in our lifespan, we are going to learn them as the socio-emotional development. But before that, let's understand what are emotions. Now, the word emotion is derived from a Latin word called emovere, which means to stir up, to agitate or to excite. Basically, emotions ऐसी feelings होते हैं जो कि किसी ना किसी interaction या stimuli के result के रूप में परिणाम स्वरूप पैदा होते हैं या arise होते हैं या present किए जाते हैं. So emotions के उजागर होने के लिए, surface करने के लिए, we need some or the other kind of a stimuli, which can be an event, which can be your comfort level, discomfort level, your relationship, etc. So किसी भी किस्म के स्टिमुलाई के परिणाम या उसके रिएक्शन के तहत जो हम फीलिंग्स डिस्प्ले करते हैं, जो फील करते हैं, उन्हें हम इमोशंस कहते हैं. बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इमोशनल डेवलपमेंट की. फॉर एग्जांपल, इमोशनल डेवलपमेंट इज द ऑल राउंड स्टेट ऑफ an organism, or it is an effective experience that accompanies generalized inner adjustments, mental or psychological stirred up states. but basically layman शब्दों में emotions एक ऐसी भावनाओं का समागम है जो हमें किसी ना किसी इंसिडेंट, एक्टिविटी, इवेंट के परिणाम स्वरूप हम फील करते हैं. सारे इमोशंस कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी इमोशंस जो है उनका एक हिस्सा कम्युनिकेशन कहा जा सकता है. यानी कम्युनिकेशन जो है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है इमोशनल या इमोशंस का कॉन्सेप्ट. हाउएवर इन्फेंसी में जो हम आज पढ़ रहे हैं, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी के दौरान इमोशंस काफी बड़ा हिस्सा बच्चे के कम्युनिकेशन का होता है. यानी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट में इमोशंस फोर फ्रंट में होते हैं एक इन्फेंट के लिए. इमोशंस की वाइड कैटेगरीज जो है कई रिसर्चर्स ने कॉइन करी हैं, बट द मोस्ट कॉमन and the most widely known are positive and negative emotions. Positive emotions include करते हैं enthusiasm, joy, happiness, love. Negative emotions normally include anxiety, anger, guilt, and sadness. So this is what we know of emotional development. Moving on to what is social development. अगर हम सोचें कि सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास होता क्या है, तो कई सारी बातें दिमाग में आती हैं. लाइक इट कैन बी अ प्रोसेस जिसमें हम सोसाइटी के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करना, उनके मानदंडों, पैमानों पर खरा उतरना सीखते हैं. और इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें एक मनुष्य एक सोशल बीइंग बनने की जर्नी तय करता है. और it can be attaining an ability to get along with the society or get along with a group or other people, or it can be a process by which the individual is adapted to his social environment. यानी वो अपने सामाजिक वातावरण से अडेप्ट करता है, उसमें सामंजस्य बिठाता है और एक एफिशिएंट मेंबर बनता है सोसाइटी का, जिसके अंदर वो सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है. सो बेसिकली इट मीन्स दैट हम ऐसी एबिलिटी को अक्वायर करें जिससे कि हम सोशल एक्सपेक्टेशंस के
अकॉर्डिंगली बिहेव करना सीखें। इस सीखने की प्रक्रिया को हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। Now let's start with the social and emotional development during infancy. इन्फेंसी में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के सबसे पहले जो पायदान पर आता है या जो सबसे प्राइमरी इमोशंस जैसे हम कहते हैं वो होते हैं जिसमें बच्चा अपने से या सेल्फ ओरिएंटेड होता है। सो प्राइमरी इमोशंस आर प्रेजेंट राइट आफ्टर बर्थ and they appear by the first 6 months after birth. They include surprise, interest, joy, anger, sadness, fear, disgust. And they require self-awareness, यानी sense of me और self-consciousness. यानी ये सारे emotions को arise होने के लिए the child or the infant need to have an idea about himself, his needs, his wants, his comfort. Also, these primary emotions are also termed as self-conscious emotions, and they include jealousy, empathy, embarrassment, pride, shame, guilt. And these kind of emotions, they occur for the first time around or after 6 months of birth. Some experts on emotions call these self-conscious emotions such as embarrassment, shame, guilt as other conscious emotions. यानी इन प्राइमरी इमोशंस को जिन्हें हम सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस कह रहे हैं, जो एक शिशु जब खुद की ज़रूरतों और खुद की आदतों और खुद के कंफर्ट को लेकर जब कॉन्शियस हो जाता है उसके बाद इन इमोशंस को डिस्प्ले करता है, तो प्राइमरी इमोशंस को सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस भी कहा जाता है और कुछ रिसर्चर्स इन्हें अदर कॉन्शियस इमोशंस भी कहते हैं because they involve emotional reactions to others. For example, अगर पेरेंट्स बच्चे के किसी काम किए जाने पर उसे एनकरेज करते हैं, उसे अपलॉड करते हैं, तो बच्चा प्राइड जैसे इमोशंस को दर्शाता है, शो करता है. So primary emotions only arise after the child has gained a consciousness of his own needs, his own comfort, and that is in the first 6 months. And they also are termed as self-conscious emotions, and they can also be termed as other conscious emotions. Another thing is very interesting is emotional expression and social relationships. This will also clarify why we are actually studying these socio-emotional development together and not separately. Emotional expressions are the basis of infants' first relationships. बच्चा अपनी माँ के साथ, परिवार के साथ जो भी रिश्ते बुनता है उसमें उसके इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. जितनी क्षमता एक बच्चे में होगी टू कम्युनिकेट हिज इमोशंस will give or will construct a good emotional bond with his parents or with his caregivers. जितनी अच्छी तरीके से बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख लेता है उतना ही अच्छे से वो अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप को और इमोशनल बॉन्ड को डेवलप करता है. ना सिर्फ पेरेंट्स अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को बच्चे के इमोशनल एक्सप्रेशन के हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं या चेंज करते हैं, बल्कि बच्चे भी अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को अपने पेरेंट्स के इमोशनल एक्सप्रेशन के रिस्पॉन्स में मॉडिफाई करते हैं. बेसिकली जो शुरुआती इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं, जो इन्फेंसी के शुरुआती स्टेज में बच्चा सबसे पहले जिन इमोशंस को एक्सप्रेस करता है और जिस तरीके से करता है वो 3 मेजर इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं. Crying and smiling are the first ones, and then comes fear. So crying is the most important mechanism जो कि न्यूबॉर्न्स के पास होता है दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने का. अगर परेशान है तो रोएंगे, भूखे हैं तो रोएंगे, if they are wet तो रोएंगे. So बाकी कोई भी चीज सीखने से पहले या बाकी कोई भी चीज का स्किल अटेन करने से पहले बच्चा अपनी हर जरूरत, हर अवस्था
को कम्युनिकेट करता है बाय क्राइंग। बच्चे की पहली क्राई वेरीफाइज द बेबी दैट द बेबीज लंग्स हैव फिल्ड विथ एयर. So how meaningful these cries can be, because the first cry will actually signify that yes, the baby is able to breathe properly. Cries also provide information about the health of the newborn's central nervous system. Also, newborns even tend to respond with cries जब उन्हें कोई नेगेटिविटी फील होती है, वो नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं या फिर किसी दूसरे बच्चे को रोते हुए सुनते हैं. आमतौर पर babies have on an average 3 different kinds of cries. The first one is a basic cry. ये एक रिदमिक पैटर्न में की जाने वाली क्राई है, जो कि बच्चा पहले रिदमिकली रोता है, फिर एक थोड़ा सा साइलेंस प्रेजेंट करता है, एंड देन देयर इज अनदर हाई पिच्ड क्राई. So this happens rhythmically. There is a cry, then a silence, then a high pitched cry, then again there is a brief rest which results into another cry. इस तरीके से जो रोना होता है वो बच्चा आमतौर पर जब भूखा होता है ना, उस केस में बच्चा बेसिक क्राई दर्शाता है. Then there is anger cry. एंगर क्राई बेसिकली और ज्यादा तेज तीव्र आवाज में की गई रुदाली है जो बच्चा रोता है, एंड दिस इज डन विथ force. Air is expelled out of the vocal cords with force. So that is an anger cry. And then we have the pain cry. ये अचानक होता है. It's a sudden, long, initial loud cry which is followed by holding the breath and then moaning. Or the moaning could be absent as well. So the pain cry is basically as a result of something very very severe, very strong high intensity stimulus, चोट लगना, कुछ काट लेना, discomfort, etc. Okay, so there are 3 types of cries: basic cry, anger cry and panic cry. Most adults can determine कि बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, वो एंगर है, पेन है या हंगर वाली क्राई है. ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे की क्राई को ज्यादा बेटर इंटरप्रेट कर लेते हैं एज कंपेयर टू सम अदर चाइल्ड्स क्राई. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इनिशियल इमोशनल एक्सप्रेशंस आर स्माइलिंग. स्माइलिंग जो है वो बच्चे के खुद के डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए भी बहुत क्रिटिकल है. Why? Imagine there is a kid who smiles very easily. So majority of his siblings, caregivers, family members would want to take care of him because he is a happy child, he smiles easily. But एक ऐसा बच्चा जो बात बात पे रो देता है, उसकी तरफ ध्यान देने का मन नहीं करेगा. यानी एक ऐसा बच्चा जो स्माइलिंग का स्किल सीख गया है, उसकी ज्यादा बेहतर केयर हो सकती है, उसकी ज्यादा बेहतर ध्यान, उसको ज्यादा अटेंशन मिल सकती है. सो स्माइलिंग इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल एंड अ बेटर केयर फॉर द बेबी. बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्माइल. फर्स्ट वन इज अ रिफ्लेक्सिव स्माइल. रिफ्लेक्सिव स्माइल वो स्माइल होती है जो बच्चा बिना किसी स्टिमुलस, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के नींद में ही मुस्कुरा देता है. यानी किसी घटना के रिस्पॉन्स में नहीं, नींद में ही मुस्कुराने को हम रिफ्लेक्सिव स्माइल कहते हैं. एंड देन वी हैव द सोशल स्माइल, जो कि किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस या किसी घटना के रिस्पॉन्स में बच्चा स्माइल करता है. ये स्माइल 2 महीने की उम्र आते आते बच्चा करना सीखता है, जबकि पैदा होते ही बच्चा नींद में तो कई बार मुस्कुरा देता है. From 2 to 6 months after birth, बच्चे की सोशल स्माइलिंग जो है वो कंसिडरेबली इंक्रीज होती है. वो खुद भी स्माइल करने लग जाता है या फिर दूसरों के उकसाने पर भी स्माइल कर देता है. 6 से 12 महीने की उम्र में द स्माइल इज कपल्ड विथ समथिंग एल्स. अब बच्चा स्माइल करता है, आंखों को कंस्ट्रिक्ट करता है. So the expression of joy is more passionate, is more strong. In the second year, the smiling continues, which occurs in positive circumstances with parents. Smiling बढ़ जाती है जब वो अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स के साथ खेलता है.
सेकेंड ईयर में टॉडलर्स बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द सोशल मीनिंग ऑफ स्माइल्स, यानी उन्हें समझ में आ जाती है कि अगर स्माइल करते रहेंगे तो हो सकता है टॉफी मिल जाए, या हो सकता है सामने वाला एनकरेज करे, अपलॉड करे, खुश हो जाए. So the toddlers are smart enough to understand the social concept or the social aspect of smiling. And then we have fear. This emotional expression arises later than crying and smiling. One of the baby's earliest emotions after crying and smiling comes fear, जो कि 6 माह की उम्र तक बच्चा दर्शाना शुरू करता है, एक्सपीरियंस करना शुरू करता है, एंड इट पीक्स एट 1.5 years ऑफ एज. पर अगर अब्यूज्ड बच्चे हैं, नेग्लेक्टेड बच्चे हैं, वो 3 माह की आयु में भी फियर को डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं. One of the most frequent expression of an infant's fear involves stranger anxiety, यानी अनजान लोगों के प्रति बच्चे ज्यादातर डर दिखाते हैं. अनजान लोगों के प्रति बच्चे थोड़ी वेरीनेस, थोड़ा अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं. ये भी ग्रेजुअली अराइज होती है. The first stranger anxiety can appear at about 6 months of age. By 9 months, the fear of stranger is more intense, क्योंकि बच्चा ज्यादा समझने लगा है तो वो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ stranger anxiety को डिस्प्ले करता है. और 1 साल आते आते ये stranger anxiety अपने पीक पर होती है. 1 साल का बच्चा सबसे ज्यादा अनजान लोगों से घबराएगा एज कंपेयर टू 6 months और 9 month old बेबी. 1 साल के बाद बच्चा स्ट्रेंजर एंजाइटी बच्चे में कम दिखाई देनी शुरू होती है और गिरावट देखी जाती है. Not all infants show distress in the face of strangers. Individual variations होते हैं. कुछ बच्चे बहुत स्ट्रेंजर फ्रेंडली भी होते हैं, और बच्चे के आसपास वातावरण कैसा है वो भी अफेक्ट करता है बच्चे की स्ट्रेंजर एंजाइटी. ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चा अननोन एनवायरनमेंट में है, किसी और के घर किसी स्ट्रेंजर से मिलता है, तो वो ज्यादा एंग्जियस हो जाता है एज कंपेयर टू मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर इन हिज ओन होम, इन हिज ओन फेमिलियर एनवायरनमेंट. So the familiarity of the environment also plays a very big role in actually determining the intensity of stranger anxiety among babies. Now we come to another aspect of socio-emotional development, that is temperament. बच्चे का temperament कैसा है, ये भी infancy में नजर आना शुरू हो जाता है. जन्म के जस्ट बाद बच्चों की अलग अलग इमोशनल स्टाइल्स होती हैं. कोई बच्चे चेयरफुल होते हैं, हैप्पी होते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, अच्छे से फीड लेते हैं. कुछ बच्चे ज्यादातर टाइम रोने में स्पेंड करते हैं, कॉन्स्टेंटली इरिटेटिंग या इरिटेटेड होते हैं, उन्हें टाइम से सोना नहीं है, खाना नहीं है. दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्प्लेइंग डिस्कम्फर्ट. ये टेंडेंसीज बच्चे के टेम्परामेंट को दिखाती हैं, which involves individual differences in behavioral styles, emotions, and ways of responding to things, events, environment. Emotions का temperament के साथ काफी strong जुड़ाव है, because कितनी जल्दी इमोशन शो किए जाते हैं बच्चे द्वारा, कितनी स्ट्रांगली बच्चा इमोशन को डिस्प्ले कर रहा है और कितने लंबे समय तक डिस्प्ले करते जा रहा है, विल एक्चुअली डिटरमाइन बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है. 2 टाइप की क्लासिफिकेशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे टेम्परामेंट की. द फर्स्ट वन इज चेस एंड थॉमस's क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर 3 टाइप के बच्चे डिवाइड किए गए हैं, कैटेगराइज किए गए हैं टेम्परामेंट के आधार पर. The first one is an easy child. ये नॉर्मली पॉजिटिव मूड में रहते हैं, अपने रेगुलर रूटीन को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, टाइम से सोना, टाइम से खाना, और नए एक्सपीरियंसेस जब करते हैं तो उसको भी बहुत स्मूथली अडेप्ट कर जाते हैं. अगर जगह चेंज हो गई है तो ज्यादा इरिटेट नहीं होते. अगर अचानक सिचुएशन बदल गई है, कुछ नई चीज हो गई है, तो भी दे आर इजी टू अडेप्ट. However, the difficult child will react negatively to any change. They will not follow daily routines. उनका कोई टाइम नहीं होगा
उनका खाने का कोई टाइम नहीं होगा, सोने का कोई टाइम नहीं होगा, चेंज को एक्सेप्ट करने में वो बहुत स्लो होते हैं और हर चीज का रिस्पॉन्स इरिटेट होकर या रोकर देते हैं. देन देर इज समवेयर इन बिटवीन द स्लो टू वार्म अप चाइल्ड, जो कि कम एक्टिव होता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है, बट जो भी मूड वो डिस्प्ले करेगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी. जैसे इजी चाइल्ड इंटेंसली हैप्पी हो सकता है, डिफिकल्ट चाइल्ड इंटेंसली इरिटेबल हो सकता है, स्लो टू वार्म अप चाइल्ड वुड बी सबड्यूड. वो हर इंटेंसिटी या हर मूड को इतनी इंटेंसिटी के साथ डिस्प्ले नहीं करेगा. The second classification, which is a new classification on the of temperament, ये है Rothbard and Bates की classification, and they propose that there are three broad dimensions of temperament which characterize the structure of temperament. The first one is extraversion. Extrovert आपने सुना होगा, ये पॉजिटिव होते हैं बच्चे, इनमें पॉजिटिव एंटिसिपेशन होता है, थोड़े बहुत इंपल्सिव होते हैं, बट किसी भी नई चीज को लेकर क्यूरियस होते हैं, एक्टिव होते हैं. ये बच्चे ज्यादातर पॉजिटिव इमोशंस को दर्शाते हैं और नई नई चीजें सीखने में, नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने में एंथुजियास्टिक होते हैं. देन देर इज नेगेटिव अफेक्टिविटी. ये भी एक टेम्परामेंट का क्लासिफिकेशन है जिसमें बच्चा नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा डिस्प्ले करता है. फियर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, डिस्कम्फर्ट, दीज आर द इमोशंस दैट आर इंक्लूडेड इन नेगेटिव अफेक्टिविटी. ये बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी रोना या बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं. देन वी हैव द एफर्टफुल कंट्रोल, यानी ये बच्चे सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत परसेप्टिव भी होते हैं. इन्फेंट्स जो कि अपनी एबिलिटी अटेन कर लेते हैं ऑफ एफर्टफुल कंट्रोल, दे कैन प्रिवेंट देयर इमोशंस टू गेट टू हाई और टू एक्सट्रीम. वो बच्चे जो एफर्टफुल कंट्रोल नहीं कर पाते, जिनमें एफर्टफुल कंट्रोल का टेम्परामेंट नहीं है, वो अपने इमोशंस को, अपने अराउजल को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत जल्दी एजिटेट हो जाते हैं और इंटेंसली इमोशनल होते हैं. इंटेंसली इमोशनल मतलब वट एवर इमोशंस दे आर डिस्प्लेइंग इज आउट ऑफ बाउंड्स, it is extreme, it is highly out there, it is very passionate. And then we come to the last phase of emotional and social development, that is the personality development. Now here we are going to discuss the theory, a part of the theory of by Erikson, the psychosocial theory by Erikson. I already have a video on this theory and I'll put the link somewhere on the screen in the video. उस स्क्रीन पे क्लिक करके आप साइकोसोशल थ्योरी को, एरिक एरिक्सन की थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हैं. नाउ इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमोशंस एंड टेम्परामेंट ये पर्सनालिटी के की एस्पेक्ट्स होते हैं और व्यक्ति के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को शेप करने में भी हेल्प करते हैं. सो बच्चे की पर्सनालिटी जो है इन्फेंसी के दौरान 2-3 फैक्टर्स से शेप होती है. द फर्स्ट वन इज द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज, जो बताता है कि बच्चे की इन्फेंसी के दौरान पर्सनालिटी किस तरीके से शेप हो सकती है. दिस ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का स्टेज जो है वो एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अनुसार दिया गया स्टेज है, जो बच्चा पहले साल में एक्सपीरियंस करता है. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वेरी इजी वर्ड्स. बेसिकली इसका अर्थ ये है कि अगर एक बच्चा बहुत अच्छे से केयर किया गया, उसका ध्यान रखा जा रहा है, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है, उसे अटेंशन फोकस दी जा रही है, सिक्योर्ड फील कराया जा रहा है, तो वो ट्रस्टिंग होगा, वो चीज़ों पे, लोगों पे विश्वास करना शुरू करेगा. क्योंकि अभी तक बच्चा मदर की वूम्ब में काफ़ी सिक्योर्ड और suitable condition में था. As soon as it comes out of the mother's body, it has taken birth, suddenly the environment has changed. There is a drastic change in environment and now the child needs to be felt secured, loved, cared for.
और अगर ऐसा करने में केयर गिवर सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो बच्चा ट्रस्टिंग नेचर का होगा, ट्रस्टिंग पर्सनालिटी को होगा। बट इफ द इन्फेंट इज नॉट वेल फेड, अच्छे से उसको कंफर्टेबल नहीं रखा गया है, बच्चे का ध्यान नहीं रखा गया है, उस पर अटेंशन नहीं दी गई है, देन देयर इज अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट दैट कैन डेवलप अमंग द इन्फेंट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो ताउम्र नहीं रहेगा, बट ये एक फर्स्ट ईयर, जन्म के बाद पहले साल की स्टेज होती है और आगे भी चल सकती है। अगर ऐसा ही व्यवहार बच्चे के साथ किया गया तो ये मिसट्रस्ट की भावना बच्चे में नेगेटिव आउटकम्स में रिजल्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो इन्फेंसी की दहलीज को ट्रस्ट के साथ, सेंस ऑफ ट्रस्ट के साथ पार करता है, वो आगे जाकर मिसट्रस्टिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो पहले 2 सालों में अपने पेरेंट्स द्वारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, बहुत केयर किया गया, बट आफ्टर अ वाइल व्हेन ही गेन्स सम कॉन्शियसनेस और वो अपने आप को लेकर और अपने आसपास चीजों को लेकर थोड़ा ज्ञान प्राप्त करता है और अचानक पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, वो वापस उस ट्रस्ट की भावना से मिसट्रस्ट पे आ सकता है। अब वो अपने आसपास लोगों पे विश्वास करना बंद कर सकता है। सो इट इज नॉट set in stone. Then the second aspect of personality development is the understanding of self. Now self recognition बहुत बड़ा aspect है बच्चे की personality development का। 15 से 18 महीने का बच्चा यानी 1.5 साल की उम्र का बच्चा जो है वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के साइंस डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं। 2 साल का बच्चा अपने आप को मिरर में देख के पहचान जाता है कि ये मैं हूं और मैं अपने भाई की गोद में हूं। सो अगर उसका भाई उसको गोद में लेकर आईने के सामने खड़ा हो जाए तो वो समझ जाता है कि जो गोद में है वो मैं हूं और मैं अपने भाई की गोद में हूं। सो 2 साल में बच्चा अपने आप का रिकॉग्निशन, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है और ये एक बहुत अच्छा एक सूचक है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का, सेल्फ रिकॉग्निशन का, जिसे हम 1.5 साल की आयु में शुरुआत मानते हैं। ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा हिस्सा है। Then another aspect which can shape the personality of an infant is independence. एरिक एरिक्सन जन्म के दूसरे साल में दूसरी स्टेज को प्रेजेंट करते हैं, विच इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम यानी ऑटोनॉमी मतलब बच्चा स्वायत्त हो रहा है, अपनी खुद की मर्जी का मालिक होना शुरू कर रहा है, क्योंकि अब उसका मोटर डेवलपमेंट भी काफी अच्छे तरीके से हो रहा है। ही कैन वॉक, ही कैन रन, ही कैन ग्रास्प थिंग्स। सो इस समय बच्चा इंडिपेंडेंस फील करता है। इंडिपेंडेंस हियर इज एन इंपॉर्टेंट इशू इन द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। एरिक्सन के हिसाब से सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है दैट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। ऑटोनॉमी तब एक बच्चे को फील होती है जब वो अपनी मेंटल और मोटर एबिलिटीज को डेवलप करता है। यहाँ पर बच्चा सिर्फ चल नहीं पा रहा, वो क्लाइंब भी कर लेता है, चीजों को खोल लेता है, बंद कर लेता है, पुश पुल कर लेता है। सो यहाँ बच्चा नई नई चीजें, उसके लिए वो बहुत नई चीजें हैं, चीजों को उठा लेना, फेंक देना, थ्रो करना, जंप करना। सो इसमें बच्चा प्राइड फील करता है। आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस किया होगा अ यंग किड आस्किंग यू टू वॉच वाइल ही जंप्स फ्रॉम स्टेयर्स, और कोई छोटा सा जंप करके ही फील्स प्राइड दैट लुक आई हैव जंप्ड सच अ लार्ज height. So here the infant feels pride in his accomplishments and wants to do everything himself. वो हर चीज खुद करना चाहेगा, right from खाना खाना to deciding what he wants to eat to flushing the toilet or whatever. He wants to do everything himself because he has gained this newfound ability that he can do things. Here it is important for parents to recognize कि बच्चा अभी motivated है, वो हर चीज खुद करना चाहता है। हालांकि बच्चा गलतियां जरूर करेगा। If he wants to have his food himself, he will spill the food. वो चीजें गिराएगा, खाना गिराएगा, गंदा करेगा। इस पॉइंट पे यदि बच्चे को एनकरेज किया जाए, डांटा नहीं जाए, डिस्करेज नहीं किया जाए, तो बच्चा
प्राइड फील करेगा, ऑटोनॉमी और ज़्यादा इंक्रीज करेगा और अपने मसल्स को, इम्पल्सेस को और भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीखेगा। बट अगर इस समय पेरेंट्स या केयर गिवर्स इम्पेशेंट हो जाते हैं और बच्चे को खाने से रोकते हैं कि तुम नहीं खाओगे, मैं खुद खिला दूंगी, या उसके पीछे पीछे उसको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे को अपनी एबिलिटी पे डाउट होना शुरू हो जाता है और शेम होना शुरू हो जाता है दैट ही कांट डू थिंग्स ऑन हिज ओन। So, here the child's independence decides whether the child will feel autonomy by the help of parents' encouragement, or the child will feel doubt or shame over his abilities, lack of abilities because of the parents' attitude or the caregiver's attitude. इसी समय पेरेंट्स जो कॉन्स्टेंटली ओवर प्रोटेक्ट करते हैं अपने टॉडलर्स को या उनके द्वारा की गई गलतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो बच्चे एक्सेसिव सेंस ऑफ शेम और डाउट के साथ इन्फेंसी की दहलीज को पार करते हैं। So this is how you can shape, or this is how the emotional and social interaction of a child can shape the personality in the first 2 years after birth, that is during the infancy period. So that is all on today's class. We learnt about the social development, emotional development, how they are connected, how the child gets a sense of self, the primary emotions, then the feelings or the feeling of independence, trust versus mistrust, the temperament and the classification of children on the basis of temperament. So that's all. For notes on the topic, do check the description box below. Thank you all very much.